Hello and namaste to one and all. I am Ritu Srivastava, a teacher trainer, facilitator, educator and a consultant in education. In my previous videos, we discussed about 21st century learner. 21st century learner have pursued excellence, explored new horizons, excel in the chosen field. आज मैं आपको 21st century skills के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशंस और कुछ बातें डिस्कस करूंगी, बताऊंगी. Today's requirement is 21st century skills. आज हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल 21st century skills की जो योग्यताएं हैं, जो एबिलिटी हैं, उनके बारे में जानना चाहता है, उनको पूरा करना चाहता है, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर. इट इज द नीड टू बी सक्सेस इन द लाइफ. द 21st century skills आर, इस 21st century skills को 12 एबिलिटीज में बांटा गया है. ये इन 12 एबिलिटीज में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये ऐसी 4 स्किल्स हैं जो इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो वो चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है और अपने आप को उसमें एंगेज कर सकता है. द पर्सन कैन बी क्रिएटिव, ही हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव. इंडिविजुअली nobody can be success, nobody can work, and he has to be strong communicative होना चाहिए. And with this one has to realize the importance of literacy, whether it is in terms of information, media or technology. Information कहाँ से मिलती है? Books. There are a lot of libraries of digital libraries where the people can get the information. Media literacy, मीडिया में कौन सी चीज कितनी, कब और कैसे पढ़नी और जानकारी एकत्रित करनी है, और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, ये तीनों लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज मस्ट और वी कैन से अ मैंडेट फॉर टुडे. आफ्टर गेनिंग these 7 centuries, the person has to be flexible, leadership quality has to be there, he has to be a person who can take the initiative and goal oriented, productive होना चाहिए. उसकी productivity should reach to the highest of the expectation जो उसने अपने लिए सेट किया है. दूसरा क्या सेट करता है उससे नहीं, खुद के लिए the person has to be productive and has to have a very very strong social skill, because we are a social person. We live in the society, we have to interact with the people. If we are not interacting, we are all alone, nobody is going to bother. So for a successful individual, apart from all these ability, there are 3 very important abilities that person has to have. That is working for self and others safety and health, self knowledge and education, and ability to interact, to socialize. This 21st century is again categorized into 3 knowledge domains. ये फिर से इसको 3 नॉलेज डोमेन में डिवाइड किया गया है, जो कि 21st सेंचुरी लर्निंग को और इफेक्टिव बनाता है. ये नॉलेज डोमेन्स जो हैं उसमें फाउंडेशन नॉलेज, वेयर द पर्सन कैन नो, कैन लर्न न्यू थिंग्स. देन मेटा नॉलेज, वेयर द पर्सन कैन अप्लाई द लर्न थिंग्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमनिस्टिक नॉलेज, which is related to values. The foundation knowledge covers the ICT skills,
द कोर कंटेंट नॉलेज, वो क्या पढ़ रहा है, उसकी इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, उसकी कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में जानना. एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी, इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है. इफ द सब्जेक्ट इज नॉट एबल टू गेट कनेक्टेड आइदर with ICT or with the core content, so there should be a cross disciplinary exchange of knowledge also. And the learner has to have a meta knowledge domain which has creativity, innovation, problem solving, critical thinking, communication and collaboration. With these two, the most important is humanistic knowledge which has values. ये जो संस्कार हैं जो हम अपने बच्चों को बचपन से देते हैं, संस्कार स्कूलों में नहीं दिया जाता, संस्कार बच्चा घर से सीखता है. और इस संस्कार को आगे बढ़ाने का काम एजुकेशन फील्ड्स करते हैं, स्कूल्स करते हैं, या वो जब तक ग्रो करता है तब तक कुछ ना कुछ वैल्यूज़ गेन करता है. These values can be life skills, ethical and emotional awareness, and cultural competency. Today's world is shrinking. Shrinking not in the terms of diameter or area. The world is shrinking in the terms of connection. Now people are getting connected to each other. एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. तो जब वो कनेक्ट हो रहे हैं तो एक कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है. तो उस कल्चरल एक्सचेंज को हम किस तरीके से बैलेंस करें कि हमारी अपनी आइडेंटिटी ना खोए, इसके लिए भी हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं. 21st सेंचुरी स्टूडेंट को इसके लिए भी प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. 21st सेंचुरी लर्नर इज ऑल्सो अ कोलैबोरेटर, कम्युनिकेटर एंड क्रिएटर. जो भी वो सीखता है, जो भी वो कोलैबोरेट करता है लोगों के साथ, उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक्शन के साथ वो कम्युनिकेट करता है वापस. और जो वो कम्युनिकेट करता है वो क्या होते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स, और जिसके वजह से वो एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनता है. यहाँ पर एज एन अडल्ट वी नीड टू इंटरवेन, वी नीड टू गिव अ hand holding for our students, whether the child is of any age, whether the child is of just started going to school, या वो बच्चा प्राइमरी स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में हो, या किसी भी वो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में हो. एवरी इंडिविजुअल नीड अ स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग में हैंड होल्डिंग करनी होती है, बट उनका टास्क नहीं करना है. यहाँ पर हर बच्चे की या हर इंडिविजुअल की जो प्रॉक्सिमल जोन ऑफ डेवलपमेंट होता है वहां तक बच्चा पहुंच जाता है या इंडिविजुअल पहुंच जाता है. उसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट पर जब वो अटकता है तो वहां पर एज एन एक्सपर्ट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम अ स्कैफोल्डिंग एंड ब्रिंग देम आउट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल जोन बाय फॉलोइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजी. जिस तरीके से जो भी इंडिविजुअल सीख सके उसकी वो स्ट्रैटेजी अपनाते हुए उसको हमें स्कैफोल्डिंग से लेकर एक्सपर्टाइज के जोन में लेके आना है. सो दिस जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द चाइल्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल जोन हैज टू कम टू scaffolding, and from scaffolding with proper guidance, with proper influence, the child has to move to the zone of expertise. And moving students from 21st century towards 21st century skill, the other important things are determining their learning objective. क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, किस ध्येय के साथ बच्चा पढ़ रहा है, उसको आगे चल के क्या करना है, उसका बिहेवियरल चेंजेस क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है, ये भी हमें यही सेट करना होता है. उसके साथ साथ उसको क्वेश्चन की क्या टेक्निक्स हैं, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाट आर 5 Whys and H, व्हाट आर हाउ टू इनकरेज क्वेश्चन ड्यूरिंग डिस्कशन, हाउ टू मेक द डिस्कशन इंटरैक्टिव. बच्चा सिर्फ सुने ना, कोई भी इंडिविजुअल से उसको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या वो कहीं सेटिस्फाइड नहीं है तो ही शुड बी एबल टू क्वेश्चन. तो वो क्वेश्चनिंग टेक्निक भी हमें उसको सिखानी है. प्रैक्टिस व्हाट एवर हैज टू बी असेस्ड,
जो भी उसको लर्निंग है उसको प्रमोट करने के लिए उसकी इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग भी ज़रूरी है। वो किस तरीके से प्रैक्टिस करता है, उसकी एक्टिव लर्निंग क्या है, उसका सीखने का तरीका क्या है। हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, हर एक को एक पैरामीटर में एक साथ हम नहीं जज कर सकते। सो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू असेस द चाइल्ड। आफ्टर असेसिंग वी मूव टू रिव्यू। अगर हमने किसी चीज़ को असेस कर लिया, किसी चीज़ का मूल्यांकन को टेस्ट ले लिया या उसके ऊपर हमने अपना एक निर्णय दे दिया, लेकिन अगर हमने उसको रिव्यू नहीं किया तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वो रिफाइन नहीं होगा। तो इम्प्रूवमेंट और रिफाइनिंग के लिए हमें उसका फीडबैक लेना ज़रूरी है, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। और जो भी फीडबैक्स का जो आउटकम आता है, जो भी लर्निंग आती है, उसको हमें अपने जो हमने बच्चे का गोल सेट किया है या बच्चे ने खुद के लिए जो गोल सेट किया है वहाँ पर से और जो उसका आउटकम है, उन दोनों को मैप करना ज़रूरी है। और जब हम मैप करते हैं तो उससे देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन किया था और जो आउटकम आया है, इन दोनों के बीच में कोई गैप तो नहीं है। अगर वो गैप है तो वी अगेन हैव टू डू अ PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट टू फिल द गैप एंड कीप ऑन डूइंग दैट PDCA टिल वी गेट द सोल्यूशन। इन सभी स्किल को सुचारू रूप से एक व्यवस्थित ढंग से क्लियर ऑब्जेक्टिव और सोच के साथ अगर हम फॉलो करते हैं या कोई भी इंडिविजुअल फॉलो करता है तो हमारे बच्चे एक ग्लोबल सिटीजन के साथ compete करने के लिए तैयार होंगे। They can become a successful global citizen and meet their desired goal. And in this world of competition and in this world which is moving towards 21st century, if we are not able to change ourselves, the days are not very far where the illiterates of 21st century will not be those who cannot read or write, will be those who are not ready to learn, unlearn and relearn and make their learning an ongoing lifelong process. आज इस वीडियो में हमने 21st century स्किल में क्या है, उसको हम किस तरीके से अपने और आपके बच्चों के ऊपर, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर जो हमारे भविष्य हैं उनके साथ एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ हम अपना सकते हैं, इसके बारे में शेयर किया गया। इफ़ यू लाइक द थॉट, डू सब्सक्राइब इट and we will be here soon with some more information. Till then, namaste and thank you.